Well, ahead of the Haryana elections, hectic parleys are underway both in NDA camp as well as INDIA camp in Haryana. While no formal alliance has been announced so far in run-up to the assembly polls, the talk between the Congress party and the Aam Aadmi party is in the final leg, is what the sources are telling Times Now. They're also in fact stating that the Aam Aadmi party is likely to take the offer of 6 seats to contest alongside the Congress party in the upcoming polls. Sources are telling Times Now that formal announcement of the alliance between the two parties is expected today, and the Aam Aadmi party has already agreed to fight on 5 seats, with the party keen on contesting on seats of their choice only. Now, as per the sources, Aam Aadmi party's negotiators are believed to be keenly pushing for an alliance with the Congress party in the state of Haryana. Listen in. बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। उम्मीद है कि जल्द हम सब आपसे मीडिया के भीतर आकर रूबरू होंगे और कुछ गुड न्यूज़ आपको देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से, वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। Now let's tell you about some of the seats that the Aam Aadmi party could contest from if the alliance does shape up today. Now sources have told Times Now that the party could contest from the following seats in Haryana. Let me take you through all of them. First is Jind, then is Panipat Rural, Faridabad, that is quite near to the Delhi, Kalayat, Pehova and Gurugram. So these 2-3 seats are quite near to the Delhi and the national capital. So these are the seats that will be finalized and will likely be announced today if the alliance between the Aam Aadmi party and the Congress party finally shapes up today. Let's listen in to the reactions. आज की जो आवश्यकता है, देश की जरूरत है, वो है लोकतंत्र और संविधान बचाने की। अगर मान लीजिए कोई वैचारिक बेमेल भी है और ऊंच नीच है, सिद्धांतों में भिन्नता है, तो भी बड़े कॉज के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए हम सबको यथासंभव साथ आना चाहिए। Shri Manohar Khattar has said that Congress has conceded defeat by having an alliance with our party in Haryana. The Congress party is adhering to the India Alliance Dharma, and I think that he should mend his own house and put his own house in order rather than speaking about the Congress. Congress will have a massive win during the Assembly election 2024. But the Bharatiya Janata Party is watching this very closely and saying that the two parties are coming together in the fear of defeat and also a desperate bid to protect the corrupt in the party. Listen in. इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते? तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है।
इंडी अलायंस का कोई मिशन या विजन नहीं है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन और अपने अपने कंफ्यूजन में चलते रहते हैं और मोदी से ऑब्सेशन है और अपना अपना करप्शन बचाना है। इसीलिए कहीं पर गठबंधन कर देते हैं, फिर वो गठबंधन टूट जाता है। तो ये अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन से ग्रसित है और ये दिखाता है, इतना डेस्परेशन है कि अलायंस बना दो, हरियाणा में अलायंस बना दो। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टियां एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बनी हुई है, जो पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन है, उनको भी हरियाणा में साथ आना पड़ रहा है। इसका मतलब अकेले लड़ने में उनको कोई भी श्योरिटी नहीं है कि हरियाणा की जनता उनको समर्थन देगी।